میں آپ کے ساتھ علی عباس نقوی، اور آپ اس این ڈی ٹی وی کی خاص پیشکش میں آج آپ دیکھیں گے جو ایران نے آج اٹیک کیا ہے اسرائیل کے اوپر، اور اس اٹیک سے کیا پوری دنیا بھر میں خوشی ہے یا غم ہے، کس طریقے سے لوگ جو اس اٹیک کی وجہ سے خوشیاں منا رہے ہیں، ہم آپ کو وہ ساری کی ساری چیز دکھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایران نے کیسے یہ اٹیک کیا اور کیا کیا اس کے ویژول تھے۔ سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں، آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل یہ جو میسائلز ہیں وہ کس طریقے سے اسرائیل کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ بھی دیکھیں گے آپ جو سینیہ ٹھکانے ہیں وہاں پہ اسرائیل کی میسائل پڑتی، اور یہ پوری میسائل جب پہنچتی ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے یہ میوزیکل ایکڈوم آف لاڈ جسے کہا جاتا ہے، میوزیکل اکثر جسے کہا جاتا ہے فلسطین کے اندر یروشلم میں جو ہے وہاں پر یہ پوری طریقے سے ابھی کیسے لوگ جو وہاں پہ جو خوشی سے یہ طریقے سے وہاں جب یہ میسائل سے انہوں نے دیکھا کہ وہ اسرائیل کی طرف جا رہی ہیں تو کتنی خوشی کا وہاں پہ ماحول ان کو نظر آیا۔ وہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو تو نظر آئیں، وہیں آپ کو دکھاؤں جب یہ کربلا کی طرف بھی یہ جا رہا تھا، جو عراق کی طرف سے بھی میسائل کی، تو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں آسمان میں پوری میسائلز جاتی ہوئی یہاں پہ دکھ رہی ہیں، جس میں ڈرونز بھی ہیں اور میسائل بھی یہاں پہ دکھیں گے۔ وہیں اس کے بعد جو خوشیوں کا اظہار ہوا ہے وہ کیسے ہوا ایران کے اندر، سب سے پہلے یہ آپ نے ایران کا دیکھا، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں عراق کے اندر۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں عراق کے بعد میں جہاں پہ لوگ خوش ہوئے وہ نظر آئے۔ وہی یہ پوری کی پوری جو چیز تھی یہ کس بنا پہ ہوا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ آپ نے کربلا کا تو دیکھ لیا کہ جو ہولی شہر ہے اس کے اوپر سے بھی یہ سارے جو میسائلز اور ڈرونز گئے ہیں۔ وہیں یہ کس بنا پہ تھا وہ آپ کو تھوڑا سا ہم سمجھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے ایک بہت اسپیشل گیسٹ بھی ہے، ہم آپ کو بتا دیں 1 اپریل کو جو دمشق ہے سیریا کے اندر ایران کا وانجی دودتاواس تھا، وہاں پر اسرائیل کے ذریعے اٹیک ہوتا ہے جس میں آئی جی سی کے ان کے کئی کمانڈر تھے، ان کا ایسیسینیٹ ہو جاتا ہے، ان کا ندھن ہو جاتا ہے، جس کے بعد سے ایران نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کا ضرور بدلہ لیں گے۔ کہ بتا دیں قاسم سلیمانی کا بھی اسی طریقے سے ایسیسینیٹ ہوا تھا جب بغداد میں، تو اس کے بعد ایران نے فوراً بدلہ لیا تھا اور عراق کے اندر جو یو ایس بیس تھے اس پہ حملہ کیا تھا۔ وہیں یہ ساری یعنی ایران نے ایک طریقے سے یہ دکھا دیا، جس طریقے سے آپ نے میسائل دکھائی جو میں نے ابھی ویڈیو میں، ایران نے دکھا دیا کہ اگر ہم پہ کوئی بھی حملہ کرے گا تو ہم اس کا فوراً جواب دیں گے۔ اور اسی ساری چیز پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ کچھ جو موجود ہیں، احمد صورت والا جی ہیں جو اسکالر ہیں المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی قم یعنی ایران کے اندر ہی ہیں، بہت اچھی پکڑ رکھتے ہیں اور انفیکٹ وہاں کے کئی آرگنائزیشن سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے صورت والا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا این ڈی ٹی وی میں۔ سب سے پہلے یہی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا اس وقت ماحول ہے وہاں پہ ایران کے اندر، آپ وہیں ایران کے اندر ہی کیا ماحول ہے اس وقت وہاں؟ ایران کے اندر ماحول یہ ہے کہ ایران کی پبلک بہت خوشی منا رہی ہے، اور وہ اس بات کے اوپر خوش ہے کہ ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا ان کی لیڈرشپ نے، یہاں کے سپریم لیڈر نے، پریزیڈنٹ نے، اور پھر آئی آر جی سی کے کمانڈر تھے، جس میں کچھ لوگ مارے جاتے ہیں اور ان کی موت ہوتی ہے، جس میں خاص طور پہ ایک کے جن کو یہاں شہید زاہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جب انہیں بھی مارا گیا تو اس وقت سے لے کر اب تک کے یعنی 1 اپریل سے لے کر کل رات تک کے ایران کے مختلف لیڈرز نے بار بار یہ کہا کہ ہم بدلہ لیں گے۔ اب جب آپ دیکھیے کہ امریکہ، اسرائیل اور پھر اس کے بعد انگلینڈ ہے، فرانس ہے، جرمن ہے، یہ سب کنٹریز اپنے اپنے طور پر ایران کو یہ میسج بھیجواتے ہیں کہ ٹینشن نہیں بڑھاؤ، ٹینشن کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ لوگوں نے کنڈم کیا، آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ٹینشن نہ بڑھاؤ۔ اگر آپ ٹینشن بڑھانا نہیں چاہتے ہیں
तो आपको उसको कंडेम करना चाहिए था। तो उस दिन से ये लोगों की कोशिश है कि ईरान बदला न ले और ईरान उस दिन इंतजार कर 2 हफ्ते के करीब में कुछ कम टाइम उन लोगों के पास था कि उनके पास जो अपने सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, खुद इसराइल ने पूरी तरह से उसको हाई अलर्ट पे कर दिया था। अमेरिका ने भी ये वादा किया था कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम इसराइल का दिफा करेंगे। इंग्लैंड और दूसरे जॉर्डन और जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं, सब लोग पूरी तरह से हाई अलर्ट थे। अब ईरान तकरीबन 2 हफ्ते से ये कह रहा है कि हम बदला लेंगे और वो सब लोग तैयारी कर रहे हैं ईरान के बदले को पूरी तरह से नाकाम बनाने की। उसके बाद ईरान रात में हमला करता है अपने ड्रोन्स के जरिए से, बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए से और क्रूज मिसाइल्स के जरिए से, और वो मिसाइल जाके इसराइल की जमीन पर लगते हैं, गिरते हैं, जिसके वीडियोस हम लोगों को इंटरनेट के ऊपर दिखाई दिए, वायरल हुए हैं। तो यकीनन ये ईरान के लिए, ईरान की ताकतों के लिए, ईरान की आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 2 हफ्ते के करीब का हमने आपको टाइम दिया, उसके बावजूद भी आपके डिफेंस सिस्टम को हमने निकम्मा और नाकारा साबित कर दिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपने बहुत ज्यादा इतराया करते थे। तो आप उसका दिफा भी नहीं कर सके और हमारे मिसाइल और ड्रोन्स आपकी जमीन पर जाकर लगे। तो यहाँ की आर्मी जिस तरह से खुश है और उन्होंने अपने ऑपरेशन को तवक्को से ज्यादा कामयाब ऐलान कर दिया है, तो यहाँ की पब्लिक तो रात में जैसे ही ऐलान हुआ कि भाई यहाँ से ड्रोन्स गए हैं वहां पर हमला करने के लिए, पब्लिक ने होली श्राइन्स के ऊपर, अपने स्ट्रीट्स के ऊपर जश्न मनाना शुरू कर दिया था और इसको ट्रू प्रॉमिस देखते हुए बहुत ज्यादा खुशी मना रही है पब्लिक। वहीं सूरत वाला जी एक और भी चीज़ इसमें सामने नज़र आई कि जैसे ईरान ने जो अटैक किया है वो एक तरीके से देखा जाए तो सैनिक उनके जो वो थे वहाँ पे उनके ऊपर हमला है, ये देखा जाए तो सिविल पे कोई हमला नहीं। तो मतलब क्या देखना चाहते हैं, क्या ईरान ने ये भी एक मैसेज दिया है कि हम इंसानियत भी रखते हैं, या क्या उनकी और स्ट्रेटेजी है? जी, ये एक बहुत अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया। पिछले कुछ टाइम से अगर हम लोग देखते हैं 190 दिन से इसराइल का एक हमला चल रहा है आम इंसान, निहत्थे इंसानों के ऊपर, जिसमें 35,000 के करीब में बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग सब मारे गए हैं। आधे से ज्यादा तादाद इनमें खवातीन की है और बच्चों की है। और इस जंग को, इस तरह की जो एक तरफा जंग है कि जो निहत्थे लोगों को भूख के साथ, उनकी प्यास के साथ, और जो हमको पता है कि वहां पर किसी तरह की मदद को जाने नहीं दे रहा है, एक तरफ वो ये हमला करता है जिसमें निहत्थे लोगों को मारता है। लेकिन ईरान ने पिछले 5 साल के अंदर 2 हमले किए हैं। मैं दोनों हमले, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया अपने शुरुआती वर्ड्स में, कि ऐनुल असद के ऊपर जब हमला किया, यूएस बेस के ऊपर, कासिम सुलेमानी की शहादत के ऊपर, तो वहां पर भी उसने मिलिट्री बेस के ऊपर हमला किया था। 1941 में जापान एक आखिरी कंट्री थी जिसने किसी अमेरिकन बेस के ऊपर हमला किया था, अमेरिकन आर्मी के ऊपर हमला किया था 1941 में। 1941 से लेकर 2018 तक के फिर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अमेरिका के ऊपर हमला करे, किसी कंट्री की। तवज्जो कीजिएगा कि कंट्री की हिम्मत नहीं थी। हो सकता है कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसने छोटा मोटा कोई हमला किया हो। 41 में जिस वक्त जापान ने हमला किया, तो 41 के हमले के बाद हम जापान को देखते हैं कि 1945 में जापान की क्या हालत कर दिया था वो लोगों ने, और फिर उसके बाद से जापान की पॉलिसी। लेकिन 2018 में ईरान ने जो हमला किया, अमेरिकन बेस के ऊपर हमला किया, और मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट है आज के वर्ल्ड ऑर्डर को देखने के लिए, कि जहां पे अमेरिका के ऊपर हमला किया जाता है, उस जमाने का प्रेसिडेंट जो ट्रंप था, ट्रंप जवाब में ये कहता है कि हम ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के ऊपर कि उसने हमारे सिविलियन जो एयरलाइन जा रही थी जिसके अंदर आम लोग बैठे हुए थे, वो फ्लाइट जो जा रही थी उसको उसने नहीं मारा है, सिर्फ उसने किसको मारा है? मिलिट्री बेस को मारा है। तो ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट भी इसके ऊपर शुक्रिया अदा करता है। तो ईरान अपनी तरफ से ये बताना चाहता है कि हम जब जंग करते हैं तो जंग के जो कानून है उसका ख्याल रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। कल भी वो लोगों ने जो हमला किया है, इन लोग की बेस के ऊपर हमला किया है। इसीलिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब सिविलियन एरियाज के ऊपर या आम लोगों की जगहों के ऊपर हमला होता है, तो उसकी वीडियोस बन जाती है, वायरल हो जाती है और दिख जाती है कि भाई क्या हुआ, क्योंकि सब वहां जा सकते हैं। लेकिन जब आर्मी के एरिया पे हमला होता है, तो वहां पर सिविलियन को, रिपोर्टर्स को आसानी से जाने की इजाजत नहीं मिलती, उनको उसका लाइसेंस, उसकी परमिशन लेना होता है। तो अभी जो पहला रद्द अमल है इसराइल की तरफ से, वो ये अमल है कि नहीं हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, 99% हमने उनके ड्रोन्स को और मिसाइल को, इससे पहले कि वो अपने हदफ के ऊपर जाते, हमने उसको रोक दिया था और उसको नाकाम कर दिया था, वो ये क्लेम करते हैं। अगर वो अपने क्लेम में सच्चे हैं
तो एक सिंपल और सीधा रास्ता है, और वो ये कि भाई रिपोर्टर्स को आसानी से अंदर जाने दे जाए, वो वीडियोग्राफी उसकी वीडियोस बनाए, फोटोज खींच, और आपके दावे को जो आप कह रहे हैं वो सच्चा साबित हो जाए। लेकिन अगर वो अपने दावे में, हम मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ईरान के हमले को जिस तरह से वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि कामयाबी नहीं मिली है, अगर मान भी लेते हैं, तो एक जो सबसे बड़ी ईरान को कामयाबी मिली है वो ये मिली है कि ईरान ने तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम देने के बाद में हमला किया है। वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न ऑफिशियल्स, वेस्टर्न जो अथॉरिटीज हैं उनको हम देखें या इसराइल को, ये सब अब तक के रस्मी तौर पर ना बदले की बात कर रहे हैं, ना आगे कोई हमले की, बल्कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज तो इसराइल से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि किसी भी तरह से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश मत करो, ये नुकसानदेह होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ साबित होता है वो ये कि इसराइल का वजूद उसकी ताकत का दबदबा बनाने के जरिए उसके ऊपर बाकी था, यानी बेस उसका दबदबा था, चाहे वो मोसाद हो, चाहे उसका डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो उसका शाबाक हो, बेस उनके वजूद का उनके दबदबे पर था। ईरान ने उनके दबदबे को चकनाचूर कर दिया है। इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा तो कल रात में गज्जा से जो ट्वीट्स आ रहे हैं, गज्जा से जो वीडियोस आ रही हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत वायरल भी हुई हैं, कि गज्जा वाले खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि 190 दिन में कल की रात पहली रात थी कि एक जेट की भी आवाज हमको सुनाई नहीं दी है। तो ये बहुत बड़ा फायदा कि इसराइल का जो दबदबा और उसकी जो ताकत, जिस तरह से उसने उसको गुब्बारे की तरह और फुक्के की तरह फुलाया था, ईरान ने उसके अंदर पूरी तरह से उसको फोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। और इसका नतीजा ये होगा कि खुद ईरान को, अगर अब इसराइल कोई कार्रवाई करता है, तो अब बदला लेने में पहले से ज्यादा ताकत का एहसास होगा, और उसके जो दूसरे ग्रुप हैं वहां पर, वो भी अपने आप को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस करेंगे। वहीं सौदाल जी, एक और भी बात इसमें आई कि ईरान ने जब ये पूरी तरीके से अटैक किया तो साथ ही साथ में ये खबर भी आई कि यमन ने भी और हिजबुल्लाह यानी लेबनान ने भी साथ ही साथ में, यानी ये पूरी पूरी सोची समझी साजिश के तहत, मतलब पूरी एक प्लानिंग के तहत एक तरीके से किया गया है। ये कितना क्या इसमें पूरा कंक्लूड निकलेगा? देखिए, पिछले 190 दिन में अगर हम लोग नजर रखते हैं और देखेंगे, तो 190 दिन में हिजबुल्लाह तकरीबन शुरुआती टाइम से इसराइल के नॉर्थ में और जो लुबनान के जुनूब साउथ से हिजबुल्लाह के हमले लगातार तकरीबन चल रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने पहले ही दिन से ये ऐलान किया है कि जब तक कि गजा की जंग को रोका नहीं जाएगा, तो हम इसराइल को दूसरे फ्रंट्स के ऊपर आराम से बैठने नहीं देंगे। उसने इस जंग को शुरू कर दिया था, यानी इस जंग में अपने आप को उसने शामिल कर दिया था। दूसरी तरफ अंसारुल्लाह जो यमन वाले हैं, इन्होंने एक जमाने के बाद ये कहा था कि कोई भी कश्ती, कोई भी वेसल हम इसराइल तक के जाने नहीं देंगे उस वक्त तक के जब तक के गजा वालों को खाना पीना नहीं मिलेगा। या तो उनको भी खाना पीना सप्लाई किया जाए, उनको भी मिलना चाहिए, या फिर किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो वो लोग भी जंग के एक शुरुआती दौर से तकरीबन वो भी इस जंग के अंदर शामिल हो चुके थे, और इसराइल को उन्होंने अनरेस्ट कर दिया था ना आराम करने में। और ईलात जो उनका बॉर्डर है, जो उनका पोर्ट है, साउथ इसराइल पे जो पोर्ट है, उसको उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया था कि वहां किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होगी। कल रात में भी 190 दिन की तरह लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले किए गए हैं, ये लगातार चल रहे हैं। लेकिन इस हमले में जो कल चल रहा था, इसको कुछ लोग ईरान के हमले से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंट फ्रंट है, जो ईरान की साइड और इनके जितने फ्रंट के जितने इनके अलायंस हैं, इन सब का ये कहना था कि ईरान कंट्री के हिसाब से और अपने ऊपर अपना दिफा करने के हिसाब से या अपना वादा पूरा करने के हिसाब से ये खुद मुस्तकिल है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, बहुत पावरफुल है। जब ये ऐनुल असद के ऊपर भी हमला करता और अमेरिका बदला लेने की भावना भी नहीं दिखा सकता है, तो इनको इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने रूटीन के काम को जारी रखा था, और ईरान ने अपनी तरफ से ये अटैक जो है ये बोलकर पहले से तैयारी के साथ किया है। वहीं अगर इसमें एक चीज़ और देखें कि अमेरिका ने बिल्कुल एक तरीके से साफ तौर पे ये बाइडेन ने खुद कॉल करके ये कहा है नेतन्याहू को कि आप अभी इसका कोई बदला रिएक्शन ना लें। वहीं एक तरीके से ईरान की तरफ से भी अभी आ गए कि हम ओवर हो चुके, मतलब हमारा जो हमने कार्रवाई करनी थी कर ली। तो यानी अब क्या लगता है कि अगर इजराइल फिर भी एक कुछ हमला या कुछ आपके खिलाफ करता है ईरान के खिलाफ, तो क्या ईरान पूरी तरीके से सक्षम है, किस तरीके से वो आगे अपना बदला लेगा? देखिए, बहुत अच्छा मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ तवज्जो जरूरी है। 190 दिन, हम इस 190 दिन 7 अक्टूबर से लेकर अब तक की अगर इसराइल की हालत को देखें, तो इसराइल खुद सक्षम नहीं है अपना डिफेंस करने में। एक छोटे सी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हमास है, अगर वो हमास से लड़ना चाहता है, वहां टनल्स ढूंढ कर निकालना चाहता है, हमास की लीडरशिप को खत्म करने की बात करता है, ये सब उसके दावे थे जो जंग शुरू करने के टाइम उसने किया था।
6 महीने से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है जिसके अंदर अमेरिका से उसको वेपन्स की सप्लाई है, अमेरिका से उसको हथियार आ रहे हैं, अमेरिका से उसको पैसे आ रहे हैं, एरिया की रीजन की दूसरी कंट्रीज है जो उसकी बहुत मदद कर रही है, जिसमें टर्की की तरफ से उसको बहुत ज्यादा सप्लाई, वो जरूरियात और वो चीजें जो इसराइल के खाने पीने की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन की जो जरूरत है, इवन टर्की वो अब तक के सप्लाई कर रहा था, जॉर्डन है और दूसरी सब कंट्रीज। इतनी सारी कंट्रीज के मदद के बावजूद 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है, इसराइल अपने किसी एक हदफ में भी कामयाब नहीं हुआ, एक मकसद को भी वो हासिल नहीं कर सका है। तो आप सोच सकते हैं कि जब एक छोटी सी जगह जो गज्जा है उसके खिलाफ 6 महीने से लड़ने के बावजूद वो कामयाब नहीं हुआ है, तो अमेरिका की मदद के बगैर जब वहां पर भी वो कामयाब नहीं हो सकता था, इवन अमेरिका की मदद के साथ कामयाब नहीं हो रहा है, जो 6 महीने से यूएन के अंदर हमने देखा, सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने बार बार रेजोल्यूशंस को वेटो किया था, हम ये सब देखने के बावजूद देख रहे हैं कि वो कामयाब नहीं होता है। तो यकीनन ईरान से मुकाबला करने के लिए इवन अमेरिका की मदद के साथ भी, जैसे जब गज्जा में वो कामयाब नहीं हो रहे तो वो कामयाब नहीं होंगे। बाइडेन का फोन और अभी तक के इसराइल की तरफ से कोई रस्मी बयान का ना आना ये बता रहा है कि वो अभी प्रॉपर ये एनालाइज करने की उनको जरूरत है कि उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सख्त और बड़ा हमला ईरान ने किया है। इस हमले के अंदर ईरान ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी तरफ तवज्जो है, जो नारा हमले के टाइम जब ट्रिगर को दबाने के लिए जो नारा वो लोगों ने लगाया था, उस नारे के अंदर वर्डिंग यूज हुई थी या रसूल अल्लाह। आप जानते हैं इस बात को, और इंडियन ऑडियंस भी इस बात को जानती है, एनडीटीवी की ऑडियंस, के या रसूल अल्लाह के जरिए से वो मैसेज ये देना चाह रहे थे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को कि ये जो अब हम हमला कर रहे हैं, ये हम हमला सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि गज्जा के मुसलमानों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए, जो इनकी तरफ से मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं कि हम तमाम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करके ये हमला करना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह के जरिए से हमला किया उन्होंने, और इस हमले को करने के बाद आज सुबह में जब ईरान ये कहता है कि हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया विद वन कंडीशन, एक कंडीशन है कि अगर इसराइल अभी हमारे किसी इंटरेस्ट को या किसी हमारे फायदे की जगह के ऊपर वो अब अटैक करेगा, तो अब हम टाइम नहीं लेंगे अपनी जवाबी कार्रवाई में, बिला फासला हम फिर इसराइल को उसका जवाब देंगे। तो अब उन्होंने ये ऑपरेशन के कंप्लीट होने का ऐलान तो कर दिया ईरान ने, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि इसराइल अब बदले के लिए हमारे किसी इंटरेस्ट के ऊपर हमला ना करे, अगर वो हमला करेगा तो फिर हम उससे फौरन उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई देंगे। और कुछ लोगों का ये कहना भी है कि 2 हफ्ते का भी टाइम ईरान ने लिया था, ईरान सक्षम था कि फौरन इसराइल के ऊपर हमला करता, लेकिन प्लान बी सी डी उसके बाद वो तैयार करना चाह रहा था कि अगर उसके बाद इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, नेटो की तरफ से या किसी और दूसरे इसराइल की अलायंस की तरफ से ईरान के ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई हो तो वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और यहाँ के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हमने अपने हमले के जरिए से ये मैसेज अमेरिका को भी दे दिया है कि अब हमारी तरफ आंख उठाकर देखना नहीं, जो भी देखेगा तो उसके बेसिस उसकी आर्मी अब बाकी नहीं रहेगी और उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। बिल्कुल, तो ये सोचाला जी आपने एक बात बताई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया। बस जाते-जाते बस मैं एक ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक इस्लामिक लीडर्स भी हैं, आप इस्लामिक दीन भी आपके अंदर है, मौलाना भी हैं आप। वहीं जिस तरीके से अभी हम ट्विटर पे भी मैं ट्रेंड कहीं देख रहा था, तो बहुत से उसमें आ रहा है कि शिया की फेवर करते हुए कि ये एक ऐसा देश है जिसने बदला लिया, इनफैक्ट कोई और देश, मुस्लिम देश जो है वो नहीं बदल ले पाए। तो क्या एक ईरान की जो इमेज है वो और थोड़ी ताकतवर हुई है, लोग और सपोर्ट अप करेंगे? जी जी, ऑफ कोर्स, यानी ये अगर हमको ट्वीट दिखता है तो ये बहुत सारे लोग जो अपने आप को शिया एतबार से देखते हैं कि ये कॉमन चीज़ है मेरे या ईरान के अंदर, तो वो इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर एक बार ताकीद करना चाहूँगा कि ईरान या रसूल अल्लाह का, यानी एक ऐसा वर्ड यूज़ करता है, एक ऐसा नारा लगाता है इस हमले के लिए कि जो कॉमन है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, या रसूल अल्लाह, और सब लोग उनको बहुत ही ज्यादा मुकद्दस मानते हैं, उनकी सब इज्जत। तो ईरान ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि मैं सिर्फ शियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, ये मुसलमानों की तरफ से मैं करना चाह रहा हूँ, और हम लोगों की, यानी मुसलमानों की यूनिटी की बात। रही ये बात कि हाँ, ईरान ने अपने आप को इस हमले के जरिए से ये मैसेज दिया है, और न सिर्फ ये, अगर हम लोग गौर करें नकवी साहब, तो गौर करने की बात ये कि ईरान ने सिर्फ ये मैसेज जो है सिर्फ मुसलमान वर्ल्ड को नहीं दिया है। गज्जा में जब बच्चों को हम भूखा देख रहे हैं, तड़पता देख रहे हैं, जख्मी देख रहे हैं, तो कोई ये नहीं देखता है कि ये बच्चा मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, चाहे वो एक हिंदू भाई हो, चाहे वो एक क्रिश्चियन हो, चाहे वो एक जूस हो जो दीन को मानने वाले लोग होते हैं,
जो भी बच्चे को देखेगा उसका दिल तड़पता है, उसका दिल बेचैन होता है। तो ईरान ने यहाँ पर ये मैसेज भी देने की कोशिश किया है कि वो ज़माना कि जब ज़ालिम अपने ज़ुल्म को करता रहे बच्चों पर, ख़वातीन के ऊपर, ये ज़माना बहुत टाइम तक के नहीं चलने वाला है, बल्कि उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर कनाडा की खबरें हैं, साउथ अमेरिका की खबरें हैं, यूरोप में कुछ जगहों से खबरें हैं, जहाँ पर लोगों ने इस बात के ऊपर मुबारकबाद पेश किया है कि एक ज़ालिम को उसके मुकाबले में खड़े होने वाली एक ताकत मिल गई है, और अब ये ताकत इतनी पावरफुल है कि ज़ालिम अपना बदला भी अब उससे लेने के लिए सक्षम नहीं है। अगर वो लेने की हिमाकत या बेवकूफ़ी, इससे कई गुना ज़्यादा सख्त तुमको अब सज़ा दी जाएगी। बिल्कुल, तो सूरत वाला जी आपने बिल्कुल बताया, और ये जो आपने बात की, बेशक जो हर यानी मुल्क के अंदर जो भी फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं वो ज़रूर खुशियों का उनके लिए एक तरीके से एक जश्न मनाएं। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें फ़िलिस्तीनी जो लोग हैं फ़लस्तीन के, वो कह रहे हैं कि आज हमारा ईद का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरत वाला जी, आप हमारे साथ जुड़े। वहीं आइए मैं आपको एक बार जाते जाते दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सब जश्न फिर एक बार मनाते हैं। ये मस्जिद अल-अक़सा के पास जो जामा मस्जिद है, उसमें आपने देखा किस तरीके लब्बैक या अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगे। देखेंगे ये ईरान का कुंभ है, मासूमा कुंभ का श्राइन है, वहाँ पे आपको देखेंगे इराक के अंदर। इनफैक्ट ऐसी वीडियोस सामने आई हैं जिसमें जो फ़लस्तीन के जो समर्थक, इनफैक्ट कनाडा से भी एक वीडियोस आई हैं, और जैसे सूरत वाला जी ने बताया कई यूरोप के भी ऐसे जगहों से वीडियो सामने आई जिसमें लोग इस अटैक पे खुशी जाहिर कर रहे हैं कि ईरान ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। इसी तरीके का और भी खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी के साथ। अब मुझे यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाज़त। बने रहिए एनडीटीवी के साथ। धन्यवाद।